Namaskar, all of you. Hello and welcome to another amazing episode on Abundance Hall of Miracles. Today, I have a very exclusive guest with me. His name is Manas Bhaumik, and he is from Northeast area. Uh, Thank you. he has recently left his job last December only, and it's been just a few months. And when I met Manas, I missed him through some WhatsApp groups and amazing transformation I've seen the day I've met him. Now it has been almost 3 months that he has been attending a lot of my courses and he has completed the 30-day transformation challenge. So I'll introduce Manas and I'll ask him. So I would request Manas to explain a little bit about himself. So who Manas Bhaumik is, the first question, and what is the purpose of Manas' life? Over to you, Manas. Thank you, Sumit. Thanks a lot. And myself, Manas Bhaumik. I am currently staying in Mumbai, but originally I am from Northeast Agartala. So basically, I'm a mechanical engineer along with 10 years of B2B sales experience. But recently, I have shifted careers, and now I'm totally on the digital entrepreneurship journey. I'm doing affiliate and network like that only. So yeah, my purpose of life is that before Corona, also I was very much stressed out about the work schedule because I was already into spirituality, but I could not perform the sadhanas or the practices because I had to travel. Being a sales professional, you had to travel all of the territories and you couldn't maintain a proper diet because you had to eat whatever you got in the hotels, the oily, spicy food, which was not that sort of a lifestyle which I wanted for me. So there was an inner awakening that do I want this lifestyle and do I want to see myself in the next 5 or 10 years where my CEO or my NSM, ASMs are in the next 5 to 10 years? And the answer was no. So I developed this mission that I would be helping people attain a super healthy lifestyle along with gaining financial freedom, working from home, along with lots of free time for themselves as well as myself. That is my core purpose. Beautiful, And beautiful. I'm happy the way you have done it for yourself, Manas, कि किस रूप में आपने किया है, and then leaving a job was not an easy part because I also left my job 3 years back and started something new. So I can understand the kind of things you have been going through. But कितने समय से आप योगा कर रहे हो? So just a little bit of introduction about that, so that we set a context that how you get the power to leave the job. देखिए, योगा मैं प्रैक्टिसेस तो कर रहा था 2013-14 से, बट वो रेगुलर नहीं था। कभी रामदेव बाबा को यूट्यूब पे देख लिया, देख के कर लिया, कभी सदगुरु जी का कोई वीडियो देख लिया। तो ऐसे करके इरेगुलरिटी होती थी, मतलब मान लीजिए साल में 2-3 महीने, 4-5 महीने कर लिए, फिर एक लंबा ब्रेक आ गया। बट दिस वाज मोस्टली ओनली द प्रैक्टिस टेक्निक बेस्ड, जैसे पीटी हम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, वैसा हो रहा था। यहाँ पे कॉस्मिक अबंडेंस में जो इनर कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, वो उस टाइम पे नहीं हो पाया था। हालांकि कुछ अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिर्फ माइंड के लेवल पे काम करती थी, लेकिन वो फिजिकल लेवल पे बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो यहाँ पे मुझे वो इंटीग्रेशन एमलगमेशन मिला, जहाँ पे यूजिंग द विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड द व्हाटएवर यू कैन से द रेजिंग द कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जांपल, व्हाइल डूइंग द ऑरा क्लींजिंग, आई कैन लिटरली फील व्हेनेवर आई एम शेकिंग the black negativity getting attracted to my magnet like hands, and then they are attracted like iron feelings, and when I throw it away, they are thrown at a distance. You even say it at 45 degrees, so it's like practical science to me. तो मुझे वो दिखता है कि काला जो है वो साफ हो रहा है धीरे धीरे, एंड आफ्टर द थर्ड टाइम इट गेट्स एंटायरली क्लींस्ड विद द वाइट लाइट एनर्जी। तो वो पूरा मुझे फील होता है, दिखता है, एंड आई एम ए विजुअल पर्सन। तो मुझे उसमें मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। Very good, very good. So good, you have already answered my question. How do you find regular yoga different from the classical yoga? Let's go a little bit deeper on this. Like, why did you join my course first? Because you were already doing yoga, you were already with a lot of spiritual organizations. What motivated you to try classical yoga when you saw my advertisements or videos, whatever? No, frankly, Sumit, first of all, maybe this is the first time I'm speaking to you also. See, I connected with you on my WhatsApp group. तो पहली बार जो मुझे इंटरेस्ट आया था that you were in contact with some Britherian sect. तो उनके बारे में मैंने बहुत पहले रिसर्च किया था, and I was really not sure कि ऐसा सच में गूगल पे तो है, बट इंडिया में या वर्ल्ड में कोई ऐसे सच में एग्जिस्ट करता है क्या जो मिनिमल से मिनिमल फूड इनटेक करके ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी से सर्वाइव कर लेते हैं। बट व्हेन आई सॉ योर फोटोग्राफ एंड योर मैसेज, द पैराग्राफ आई रेड,
I thought that there might be some truth into it, and since this guy is already in my contact, I should be in contact with him, and let us see. I mean, what he can provide. पहले तो मैं just explore करने के लिए आया था. Because of the photograph, your hairstyle, and the getup you had, I thought that you must be into yoga and spirituality क्योंकि आपके getup से वो लग रहा था. And I was just waiting that you would share something. तो उसके बाद जब हमारा फ्रेंडशिप हुआ, हमारे कॉन्टेक्ट हुए, तो आपके फर्स्ट सेशन से ही मैंने कनेक्ट कर लिया था. तो बिकॉज दैट वाज माय मेन मोटिव कि मुझे ब्रेदरियन बनना है, क्योंकि दैट्स लाइक एन एडवेंचर. बट व्हेनेवर यू डीप डाइव इनटू इट, इट्स लाइक द मोर ऑफ द रियलाइजेशन कि इंटरनल ट्रूथ क्या है, कैसे ये सब होता है. तो पहले पहले तो मैं जस्ट, मेरा इंटरेस्ट था कि ये सब कुछ नया सीखना है, जैसे हर एक चीज का होता है कि हमें ये भी सीखना है, वो भी सीखना है. जस्ट इंटरेस्ट के लिए आ गया था. बट आफ्टर दैट I got to know the deeper secret. I researched more into breatharian technology also. I also shared with you there were some pregnancies also, healthy pregnancies. यहाँ पे बेबी भी डिलीवर हुआ था breatharian diet पे. तो उसके बाद मुझे फेथ आया, एंड आफ्टर व्हेन आई प्रैक्टिस योर सेशंस, तो मुझे यही लगा कि बहुत सारी सिंपल चीजें हैं जो हम अभी तक ऊपर ऊपर से कर रहे थे, सरफेस लेवल पे. इट वाज लाइक स्विमिंग, वी डिडंट डाइव डीप इनटू इट. बट देन व्हेन वी डिड द सिंपल प्रैक्टिसेस विद द कॉन्शियसनेस, इट वाज लाइक कमिंग फ्रॉम विद इन. बाहर से नहीं, अब वो सिर्फ मतलब योगा टेक्निक्स नहीं रह गई थी, अब वो योगा होना, बी इन द, नॉट डूइंग योगा बट बीइंग इन योग, वो होने लगा था. आई नीड टू मास्टर ऑल ऑफ दैट. अभी तो जस्ट सरफेस लेवल पे. नेक्स्ट जब इंटरव्यू हमारा होपफुली होगा तो आई विल बी डाइविंग मोर डीप इनटू इट. Good. So that's exactly mere guru how he says you don't have to just do yoga, you have to become yoga. You have to be in union with yourself at body, mind and breath level, जो techniques हम सीखते हैं classical yoga में. So good. I'm happy that you were able to use your other knowledge of yoga, past knowledge of experiences which were not so deeper, because you maybe the problem is like we are never educated enough. We're never taught in that pattern. We can go step by step. So did you enjoy the step-by-step learning we were going through over the 30 days challenge and many other courses you've already done, workshops you've done with me? How do you see your learning graph over the days? Yeah, so first of all, we started I think in March, mid-March, before your actual course started. So I still remember it was a 5 a.m. session and only few students were there. तो वहाँ पे हमने शेकिंग वगैरह पहले किया था. वन ऑफ माई कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स इज दैट मुझे कितना भी चीजें पहले पहले कितना अजीब क्यों ना लगे, मैं पूरा सरेंडर कर देता हूँ. मतलब आई ओपन माई हार्ट, आई बिकम एम्प्टी. तो मैंने सीखी पहले पहले, हाँ थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन चलो कुछ नया है, सीखते हैं, करके देखते हैं, ऐसे इसी मेंटेलिटी के साथ आया था. आफ्टर दैट जब प्रैक्टिस रेगुलर होते गई, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्योंकि तब टाइम ज्यादा मिलने लगा था, एंड आई कुड डू एक्चुअली 3 times प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो नई नई चीजें जैसे एक्सप्लोर हुई, जैसे सन बाथिंग का आपने बताया था, वो पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ था कि सिर्फ सूरज की रोशनी से भी एनर्जी लेके इंसान 1 दिन 2 दिन तक बिना मतलब भूख ही नहीं लग रही थी, और वो नेचुरल था. मतलब ऐसा लगता था अभी अभी ब्रेकफास्ट करके आया है. जैसे एक दिन तो आपने कुछ शायद मुझे मना भी किया था कि ज्यादा देर तक धूप में मत रहना, बिकॉज़ वी हैड द ओशन, वी डोंट हैव द ओशन हियर. आई स्टिल रिमेंबर दैट, एंड इट वाज लाइक एन एडवेंचर. सुबह सुबह मतलब लॉकडाउन के अंदर भी एक ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग के जैसा हो रहा था. सुबह ग्राउंड फ्लोर से लेके 5वें माले पे जाओ, वहां पे जाके छत ओपन करके जाओ, वहां पे मेडिटेशन करो, मॉर्निंग का सेशन वहां पे करो, फिर 9-10 बजे तक नीचे फिर आ जाओ. तो मेरा वर्कआउट भी हो रहा था क्योंकि 5 माले तक ऊपर चल के जा रहा था. तो दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग, न्यू एक्सपीरियंस. फिर आपने मेडिटेटिव बेडिंग बोला, वो भी करके देखा. तो छोटी छोटी जो चीजें होती है जिसपे इंसान ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो सिंपल है, इसमें क्या होने वाला है. हमारा यही माइंड सेट है, हमको तो सब मालूम है, हमने सब करके देखा हुआ है. बट द माइन्यूट थिंग्स व्हेन यू डू इट एज यूर इंस्ट्रक्टेड एंड अलॉन्ग विद द बिलीफ दैट यस आई विल बी बेनिफिटेड, देन यू सी द रियल चेंजेस. या कुछ कुछ चीजें मिस भी हुई, जैसे कि आपका आई थिंक द टेक्निक वेयर द एनल स्प्लिंटर इज क्लींजिंग, ये ठीक से नहीं हो पाया मेरे से. तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट द नेक्स्ट फ्यू डेज. बट क्या जितना भी हमने किया, माइंडफुल ईटिंग जो होता है उसमें भी 55 टाइम्स च्यू करने का, इवन आफ्टर द फूड इज बीइंग डिसॉल्व्ड टू गेट टू कंटिन्यू द प्रोसेस. तो मैंने यही चीज देखा इसमें, जो आप वेज नॉन वेज का भी बोलते हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि वेज जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो उससे फीलिंग आती है कि यस वी आर मेड फॉर द वेज डाइट ओनली. कभी कभार एक छोटा सा नॉन वेज का टुकड़ा भी होता है, even after 55 to 65 times of chewing it becomes like rubber and you keep on chewing it won't melt. तो ये इससे मुझे अंदर से फीलिंग आई कि हाँ हम लोग नहीं बने हैं नॉन वेज के लिए, जो कभी कभार हम गलतियां कर लेते हैं. तो ये सारी अनुभूतियां मेरे अंदर से हुई. जो बोलते हैं ना आप कि योगा इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल साइंस, एक्सपीरियंशियल साइंस, वो बोल के समझाना मुश्किल है. तो जो ये इसको अनुभव करेगा वही समझ पाएगा.
गुड, वेरी वेल डिफाइंड। जो अनुभव की बात हम करते हैं अपने सेशंस में कि योगा इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल साइंस गाइस, इट इज एन एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज आल्सो एन अंडरस्टेटमेंट फॉर अनुभव। सो अनुभव को आपको समझना पड़ेगा, उसको बार बार करके करना पड़ेगा, then only you will find the real value of classical yoga, right? So okay, coming on, if you have to rate the practices which you have learned in last 2-3 months from me, from 1 to 10, कौन सी practice, मतलब how easy were the practice? Let's say 1 being very 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 easy, 10 being very 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 difficult. How Manas Bhaumik will rate it? इजी और डिफिकल्ट, अगर आपको टेक्निक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करना है देन इट्स वेरी वेरी इजी, 0। और मैंने नेगेटिव बोला था, मैं 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आती है, आपको माइंड ओपन करने में। ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते, टेक्निक कुछ भी दो आप, वो कैसे भी कर लेंगे, बट द रियल चैलेंज कम्स व्हेन यू हैव टू ओपन योर माइंड टू इट एंड एक्सेप्ट इट दैट यस इट विल वर्क। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब फास्टिंग सीजन 1 का डे 1, क्योंकि लॉकडाउन का पहला दिन था और पिछली रात को मैंने पूरा जो अपना रेगुलर डाइट होता है वो पूरा मैंने स्टैक कर लिया था, और मैंने डिसीजन लिया था रात के 10:30-11 बजे कि मैं ये एनरोल करूंगा, मतलब पूरा मार्केट से आने के बाद जस्ट स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एनरोल कर लिया ऐसे ही जस्ट बाय चांस। एंड देन द नेक्स्ट डे यू आर टेलिंग दैट यू कांट टेक ऑल ऑफ दैट फूड, यू हैव टू गो टोटली ऑन ए फ्रूट डाइट। तो वो मेरे लिए एक मतलब मेंटल बैरियर ही था, क्योंकि पहला तो है कि फाइनेंस, आपने इतने लॉकडाउन में आपने इतने पैसे खर्च करके लाइन में रह के इतना रिस्क लेके आपने इतना सब कुछ लाया घर पे, पैक करके रखा पूरे 2 महीने का। अभी आप बोल रहे हो कि आपको फ्रूट्स लाना, उसके लिए जाना भी पड़ेगा, फिर पुराना खाना वो खत्म, मतलब वो खराब हो जाएगा, उसका क्या करूं। दैट वाज मोर ऑफ ए मेंटल चैलेंज फॉर मी। एंड सेकंड थिंग वाज दैट कि अभी उस टाइम पे मेड भी नहीं आ रही थी, तो मुझे घर का भी काम करना, तो पूरा फिर जो भी मेरा अभी एंटरप्रेन्योरशिप का चल रहा था उस पे भी काम करना था, हाउ टू मैनेज दैट टाइम, ये सब बहुत ही बड़ा चैलेंज था। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू क्विट। उसी वक्त मेरे अंदर से एक कॉन्शियस से एक आवाज निकली कि एक दिन करके देख लो, अगर एक दिन तुम अपने मन के ऊपर तुमने जीत हासिल कर ली, यू कैन विन ओवर योर माइंड फॉर जस्ट ए सिंगल डे, देन यू कैन विन ओवर योर माइंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैंने जस्ट एक चांस लिया एंड आई समहाउ ऑर्डर्ड द फूड एंड इट लकीली इट केम विद इन टाइम। दूसरा एक 2-3 और रीजंस थे कि ग्रुप सपोर्ट बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि पहले दिन हम 3-4 स्टूडेंट्स ही थे, तो वो लोग कंटिन्यूअसली शेयर कर रहे थे आई एम हैविंग दिस फ्रूट दैट फ्रूट, तो मुझे वो मोटिवेशन मिल रही थी। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट आफ्टर द सेशन गॉट ओवर, द मॉर्निंग सेशन, विद इन ए फ्यू आवर्स यू हैड अपलोडेड द एंटायर रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। तो जब भी मुझे कुछ नेगेटिविटी आती थी कि करूँ या नहीं करूँ, आई जस्ट ओपन द व्हाट्सएप, सॉ द अदर पीपल्स मैसेजेस। तो मेरा वही हुआ कि मैंने जस्ट उसको लूप में रख दिया था। तो जब भी मैं अपना हाउस होल्ड चोर्स आई वाज फिनिशिंग दैट, आई वाज कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू दैट एंड ऑलरेडी आई हैड प्रैक्टिस्ड इट सेम मॉर्निंग, सो आई वाज रिकलेक्टिंग ऑल ऑफ दैट व्हिच वाज मोटिवेटिंग मी। तो यही कंबाइंड इफेक्ट था कि मैं सस्टेन कर पाया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, फास्टिंग के जो 9 डेज होते हैं, ये दीज आर द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द मोस्ट पावरफुल डेज, जब हमारा ग्रुप एनर्जी पूरा एक साथ काम करता है नॉन स्टॉप। ये तो गया सीजन 1 के बाद। सीजन 2 में भी मेरा और एक लिमिटिंग बिलीफ दूर हुआ, क्योंकि 1-1.5 महीने से मैं घर से बाहर ही नहीं निकला था। अभी लास्ट 2-3 हफ्ते पहले जो शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं बाहर जा ही नहीं सकता, मुझे फ्रूट्स लेने के लिए बाहर क्यों जाऊं, अभी लॉकडाउन मतलब और एक्सटेंड होगा, तो चलो ना रेगुलर ही कर लेते। पहली बार तो कर लिया, इतना खतरा नहीं था, मुझे बाहर भी जाना नहीं पड़ा। लेकिन अभी तो सारे वेजिटेबल वेंडर्स जो है वो सब गाँव जा चुके हैं, फ्रूट्स लाने हैं तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मेंटल ब्लॉकेज था, फियर था मेरे अंदर। तो बट अल्टीमेटली क्योंकि सुबह का सेशन था, मैंने ट्राई किया, चलो पहले एक बार मेंटल बिलीफ लिमिटिंग बिलीफ मैंने तोड़े हैं, लेट्स ट्राई। एंड देन मैंने ट्राई भी ये कर लिया था कि घर मतलब डिलीवरी मंगवा लूं फ्रूट्स का, बट वो नेचर है सम अदर प्लान्स, तो वो डिलीवरी मिस हो गई एंड आई हैड टू गेट आउट। तो उससे क्या हुआ कि मेरा मेंटल जो ब्लॉकेज था वो भी दूर हुआ एंड आई आल्सो सेव्ड a few bucks. Good. So both ways it was a game. It was interesting जब आपने first 30 days खत्म किए, then you did so many other courses with me also, and then you came for the second fasting also, so which was interesting because already first में आपने कितना weight loss किया था अपना, and then what is the total transformation of weight loss you've got, because that was a big concern for you. Frankly speaking, सुमित, मेरा जो फोकस था वो फैट लॉस पे था, वेट लॉस पे कभी नहीं था। तो इसलिए मैंने वेट कभी मेजर नहीं किया था। रेगुलर जब मतलब मोटा था तब भी मेजर नहीं किया था। अप्रोक्सीमेटली इट कुड बी अराउंड 85-86 आई सपोज। तो बट उसके बाद, और मेरे पास कुछ मेजरिंग डिवाइस भी नहीं था, तो मैंने कभी मेजर नहीं किया था। आई जस्ट हैड सीन दैट
the trousers and the suit which I had previously, they were so loose कि मेरे दोनों हाथ उस पे जा रहे थे, दोनों साइड से पूरा ऐसा सर्कल हो रहा था। तो ये मैं देख सकता हूँ। और अगर आप मेरे पहले के वीडियोस और फोटोज देखेंगे, तो उस पे अगर मैं साइड से अगर आपको ऐसे खड़ा दिखूं पहले वाले, तो जैसे कि मूवीज में कोई होता है ना कि एक पतले कैरेक्टर को मोटे का रोल दिया गया, तो या तो उसको सीजीआई में डालना पड़ता है या उसको फैट सूट पहनाना पड़ता है, तो उसका अलग से पूरा एक बेली, प्रोट्रूडिंग बेली यहाँ तक आ जाता है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे मेरे अभी के और पुराने जैन के, तो आपको पूरा ऐसा कॉन्ट्रास्ट, मतलब स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। So I can say that much. Good. And all of this has happened naturally, or you were doing something else also with these practices? No, these आपके जो प्रैक्टिसेस थे वो तो मैं रेगुलर कर ही रहा था, एंड उसके अलावा हार्डली कुछ मतलब जंपिंग जैक्स वगैरह करता था मॉर्निंग को हमारे, तो उसमें हार्डली कुछ 100-150 जंपिंग जैक्स, 5 सूर्य नमस्कार और 5 पुशअप, यही बस इतना ही। बट डाइट वाइट सब रेगुलर, कुछ अलग से कुछ नहीं, बस फास्टिंग के डेज पे फास्टिंग करता था। नहीं, तीन टाइम आपके जो आप प्रैक्टिसेस बता रहे थे वो तीनों टाइम करता था, यही था। गुड, दैट रेगुलरिटी, रिपीटेशन, रिदम की बार बार वो सिंपल चीजों को करना है 3 times a day, एंड दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, हाउ वेल मनस हैज चेंज्ड एट कॉन्शियसनेस लेवल, कि वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो कॉस्मिक एनर्जीज की हम बात करते हैं क्लासिकल योगा में, उस लेवल पे आपको अपने आप को रेट करना है, तो कितना बेटर हो गया? परसेंटेज वाइज बताओ कि पहले मेरा कंसंट्रेशन लेवल ऐसा रहता था एनर्जीज के साथ, नाउ आई हैव इंप्रूव्ड दिस इन परसेंटेज। See, the concentration level, because it was always challenging, because coming from a corporate sales job, we had to multitask in each and every aspect of life. So यहाँ पे भी वो challenge था, because after coming into entrepreneurship, we had to see, I wasn't exploring more. तो concentration level यहाँ पे अभी आप कहोगे तो पहले अगर मेरा परसेंटेज था से 50-55, तो अभी I can rate it to almost 85, yeah, that would be the correct parameter. क्योंकि अभी हाँ चीजें स्ट्रीमलाइन भी हो रही हैं, एंड आई एम मोर अडेप्टेड टू दिस सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल, जो कि मैं हमेशा से चाहता था व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय जॉब बिकॉज ऑफ द ऑल द माइंडलेस ट्रैवलिंग. So what were the challenges as a corporate employee you were facing? Because I understand, I have worked in corporate. It's a very stressful environment. You're just running after into the rat race, and you get lost somewhere. So Manas के क्या challenges थे working in the corporate, and how classical yoga is helping to simplify even the past traumas? Yeah, so frankly speaking, इंसान जब जैसे जैसे तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो उसके एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते हैं. तो ये मेरा अभी से नहीं, क्योंकि मैंने आई जॉइंड जॉब इन 2010, तो उस टाइम से मेरे को ये पता था कि मुझे कभी ना कभी तो खुद का कुछ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना है. ये मुझे पहले से ही पता था, बिकॉज आई वाज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स बिफोर माय जॉब. तो माय सेल्स जॉब का करियर इसीलिए था कि मैं सेल्स में अच्छा सा एक एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट करूँ. तो जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस लेता गया, एक छोटे कंपनी से बड़ी कंपनी में गया. पहले वहाँ पे 6 दिन वर्किंग था, फिर चलो 5 दिन, फिर मन में आया कि नहीं अभी एमएनसी में काम करना है, वो भी करके देख लिया. लास्ट में जो मेरी फोर्थ कंपनी थी, उसमें मन में आया कि चलो मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, वो भी मिल गया. मतलब धीरे धीरे जो एक ख्वाहिश थी इन 10 सालों में 4 कंपनीज में, वो सब कुछ पूरे हो गए. The people in the corporate sector or in the manufacturing sector were not ready to accept the digital entrepreneurship open-mindedly at that point of time, 1 year back. क्योंकि वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते थे, हमें फिजिकली डोर टू डोर जाना पड़ता था, अपॉइंटमेंट कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था. तो ये सब चीजें, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता था, उसके बदले में आपका आउटपुट बहुत कम मिलता था. तो दैट वाज द चैलेंज. एंड एज आई सेड प्रीवियसली, क्योंकि मैं बहुत पहले से स्पिरिचुअलिटी और योगा मेडिटेशन से जुड़ा हुआ था, तो आई वांटेड सम दैट सॉर्ट ऑफ ए लाइफस्टाइल जिसपे मुझे ट्रैवलिंग मिनिमल हो, आउटपुट मैक्सिमम हो, मेरे टाइम का वैल्यू मुझे मिले, और मैं अपना एक हेल्दी डाइट और वर्कआउट के लिए प्रॉपर एक टाइमिंग मेंटेन कर पाऊँ. If you travel the whole day, then you are already exhausted when you come in the hotel room or when you come in the home. तो आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए. वो तभी हो पाता था जब मैं घर से बैठ के काम कर पाता था, और घर पे भी मेरे पास पूरा, मतलब जो मैं चाहूँ वो मैं खाऊं, हेल्दी डाइट, और मेरा टाइमिंग फिक्स हो काम करने का. ये सब मुझे फ्रीडम चाहिए था, जो फ्रीडम वहाँ पे नहीं मिल रही थी. Although the paycheck was very good, and if you wanted only money, then you could earn as much as you can, no limit, because there are incentives as per your परफॉर्मेंस. तो एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया था कि सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट में नंबर, द मनी वाज जस्ट लाइक नंबर बढ़ रहे हैं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उससे. ओनली द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन.
तो एज आई सेड कि एक इनर कॉलिंग आया कि राइट नाउ इज द राइट टाइम, राइट नाउ आई एम इन माय 30s, आई डोंट हैव एनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, I mean, I'm single, and unfortunately I lost my parents at a young age. My relatives supported me through this to get up to this stage. तो मेरे को ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि मुझे या तो मुझे ओल्ड पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना है या फिर मेरे कोई वाइफ एंड चिल्ड्रन है उनको लुक आफ्टर करना है. एंड आई वाज अर्निंग गुड फॉर ए सिंगल गाय. तो मैंने यही सोचा कि अभी अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो कब लूंगा, कि कुछ साल बाद तो आई मीन जो रिलेटिव्स है वो फैमिली करना ही पड़ेगा उनके प्रेशर में, या खुद जब चाहूंगा तब. तो अभी दिस इज द बेस्ट टाइम. तो आई जस्ट जम्प्ड इन, एंड वही मुझे दिखा था कि क्या मैं 5-10 साल बाद जो अभी मेरे सीनियर्स है कॉर्पोरेट जब उनके जैसा लाइफ मुझे चाहिए क्या, एंड द आंसर वाज नो. तो मुझे और कुछ नहीं दिखा, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट यस दिस इज द राइट टाइम. अभी जितना सीखना था, जितना एक्सपीरियंस था, सीख लिया, सब कुछ कर लिया. अभी अगर प्लंज नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाऊंगा. दिस वाज द अल्टीमेट मोटिवेटिंग फैक्टर. अब नहीं तो कभी नहीं. Exactly, and that's like if we are not aligned to the path जो हम follow कर रहे हैं, we have to take a call to change the path. हमें कुछ तो नया करना पड़ेगा, and then risk taking is a very very important part of yogic lifestyle also. If you see कि risk taking, risk के लिए बिना we cannot, if we don't set higher goals, we don't achieve that. I always teach in my classes, and higher goals are always risky. They are never easy to achieve, you know. So what kind of if I have to talk about the physical benefit, the diseases Manas ne apne overcome kiye over the last few weeks and months, so what all physical challenges Manas ke overcome hue hain, specifically any diseases he was suffering from? या ओबेसिटी ये मेन फैक्टर था. इसका मेन रीजन ये था कि जब तक मैं मुंबई में रहता था, 11 months Jan to November I was working, and although I was on the run, तो ठीक ठाक था, मतलब लगभग मेंटेन था. although I was fat, बट जब मैं घर जाता था दिसंबर महीने में पूरे साल भर के छुट्टियां इकट्ठा करके, तो सिंस ऑल द रिलेटिव्स लव मी वेरी मच, तो पूरा साल भर का प्यार एक साथ खाने के रूप में आता था. एंड बीइंग सो आई मीन स्वीट एंड जनरस गाय, आई कुडंट रिफ्यूज देम. हालांकि अंदर से लालच भी होती थी कि इतना सारा खाना मिल रहा है, वो तो मुंबई में नहीं मिलता, कौन इतने प्यार से खिलाएगा. तो वो पूरा साल भर का प्यार जो है पूरे शरीर में जमा होता था और पेट निकल आता. तो दिस वाज द थिंग. तो अगर आप मेरे दिसंबर के देखोगे, नवंबर दिसंबर के तो इतना नहीं था, लेकिन जनवरी में बहुत ज्यादा बढ़ गया था. और मुझे ये टारगेट था कि क्योंकि मेरा एक इवेंट था मई महीने में, अभी वो होने वाला था 29 को, वो भी लॉकडाउन के लिए पोस्टपोन हो गया. आई वांटेड टू बी ऑन द स्टेज एंड आई वांटेड टू लुक गुड. तो उसके लिए मेरा ये टारगेट था कि दैट बाय 29th मई आई शुड बी इन माय बेस्ट शेप. ये मेरा टारगेट था. मैं लिखता था, मेरे गोल्स में लिखता था, हर दिन लिखता था दैट आई शुड बी इन माय बेस्ट शेप. दिस वाज माय गोल नंबर 2 फॉर द एंटायर ईयर. तो जो मैंने ऑलरेडी आई थिंक 20-25 दिन पहले अचीव कर लिया, डेडलाइन से पहले. Very So good. So this classical because you set a goal, universe guides you to the right ways of finding it, you know, in a natural way. And you wanted a natural way of feeling. You don't want ki jaldi se aise artificially lose rahe. So I'm happy that your that goal writing ability really helped you and it worked out for you, Manas. So yes, good. and another more I want to add that इस वेट के साथ साथ अभी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है. तो मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर किए. अभी कूर्मासन में मैं पूरी तरह से मेरे फोरहेड को मैं ग्राउंड पे या अपने टोज पे टच कर सकता हूँ. These are the benefits, added benefits. and लाइफस्टाइल मुझे ऐसा चाहिए था कि देखिए मैं जिम करके भी वेट लॉस कर सकता था, वर्कआउट करके भी कर सकता था, बट उसमें क्या होता था, मुझे एक्स्ट्रा जितना मैं वेयर एंड टेयर करता था मेरे मसल्स का, मुझे उसके लिए रेस्ट भी बहुत ज्यादा चाहिए होता था. और इस टाइम पे मैं चाहता था कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है और कंसंट्रेशन वो मेरे काम पे हो, ना कि मेरे रेस्टिंग आवर्स पे. मुझे 8-9 घंटे सोने नहीं थे, मुझे 3-4 घंटे मिनिमल स्लीप एडजस्ट करके ये सब काम करके हेल्थ भी चाहिए था, मुझे अपने काम पे फोकस करना. So that's when I started researching and all of this, and after that I came to all this knowledge, yogic sciences, and formed my group, which I'll talk later. Perfect. So your final words of advice to people watching this video: why should they start classical yoga or a yogic lifestyle? See, main benefit is that you can be your own boss of your life. You don't have to report to anyone. You don't have to, go down to anyone. You can earn. It's a cosmic abundance. You can earn abundance in every way, in health, wealth, in prosperity, everything. So you should go for it. And the main difference is that whenever you are practicing classical yoga, you develop the inner consciousness. आपका दिमाग खुल जाता है, आपके काम होने लगता है, आपको दिखने लगता है कि ये काम मैं ऐसे करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा. तो आइडियाज आने लगते हैं. You get out of the box innovative solutions which you can then implement and get the results at a very easier and faster rate.
that's my suggestion. How do you think the yoga practices, Manas, are going to help you boost the immunity? Because you have seen now classical yoga practices which we have been doing in the yogic lifestyle. Yoga being taught outside is a little different, and yoga which we are learning is a little different. So regarding that immunity, because that is a big thing, and Corona is about to stay for years with us now. So how do you feel that immunity boosting concepts work through the practices we have done? See, as you said previously that whatever we do, we should do it consciously. तो practices तो मैं बोलूँगा कि almost कुछ बहुत similar ही थे, but क्योंकि हम उसको regularity 3R जो आप बोलते हैं, regularity, repetition and rhythm, and along with the proper conscience कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये internal belief आता है. It's just that the belief. तो उसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ. Yes, Corona, because and we were doing it in the group also. अजय ने भी बहुत बार बोला, people are already sharing. So that is what I got the mental courage that yes, people, I mean, we can survive. We can even kill the virus if it by chance God gets into us. तो जैसे कि मैंने खुद करके देखा, it's an experiential. खुद बाहर गया, फ्रूट्स लाने गया, सब्जी वाले से मिला, 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन किया, फल वल लिया, फिर सैनिटाइज किया, खुद को प्रैक्टिस किया, तब जाके हुआ. तो थियरिटिकली कुछ भी नहीं हो सकता. आप प्रैक्टिस करोगे कॉन्शियस के साथ, थोड़ा करेज रखोगे, गुरु पे भरोसा रखोगे, और बाकी आपके जो भी मतलब ग्रुप मेंबर्स है उनके साथ शेयरिंग करोगे, तभी आप एक ऐसे कल्चर का हिस्सा बनोगे जिसमें सब अंदर से स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ, जो सिर्फ कोरोना नहीं, आप लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रहोगे. तो ये एक बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए, दैट इज आई कैन बी लाइफ लॉन्ग हेल्दी, सुपर हेल्दी. Well, thank you, Manas, for your time and your energies. And yes, we have a long journey to go ahead, and I have got 100,000 people to help. A lot of transformation stories I'll be releasing, guys, for all of you. So subscribe to the YouTube channel to learn more of the transformation. Join the Cosmic Abundances Hub community, where people like Manas and many more people have been transforming their lives with simple practices of classical yoga, simple ways of learning how the cosmic energy functions. You can cure the incurables. So I will see you there. Join my free live webinar. Click on the links below so that I can help you and show you a path to live a super healthy lifestyle. All right. Definitely. Thank you. Definitely. Namaskar. Thank you, Sumit. Thanks a lot. Okay.